Great. Loud and clear. Great, great. I've switched the Shall presenter I role to proceed? you, sir. Yes, sir. Yes, Okay. yeah. Okay, so guys, first of all, good evening to all of you, and I believe and I hope all of you would be fit and fine at your home. First of all, thank you to Ayush for organizing this wonderful session, and specifically on the topic which is my favorite and which is something where I have maximum expertise. So, in today's session, we'll talk about market psychology, right? So, before we proceed, first of all, I would like to introduce myself. Myself, Arvind Yadav, and I'm a professional trainer, and not a full-time trader or investor, but I am a part-time, more than a part-time trader and investor, and I've been active in the market from last almost 9 years. And apart from them, so I am from Rajasthan, Jaipur. You know, you would have heard this name of the big city, Jaipur. So and my hobbies are like I like running. I do a lot of fitness activities. So I've divided my hobbies in two parts. One is outdoor hobby. One is indoor hobby. So indoor hobby, I do a lot of research whenever I get the time. I used to interact with the people just to know the psychological things. And outdoor hobbies, obviously traveling. I love traveling, and whenever I get the time, I used to play. And as I've told you, I like running. I'm a runner. So just a small introduction, right? So let's come back to the main topic, that is market psychology. So what is psychology? You would have heard this name many times in your life. So why psychology is important, we'll discuss. And what is the typical market psychological aspect we need to work upon, right? So we are going to discuss all these aspects. So first of all, about psychology. So this is a topic which is everywhere, you know. Uh, so for an example, so psychology is something which is everywhere. For an example, you are doing so. For example, you are cooking, right? So there is some psychology behind it. The way you are cooking, the way you are thinking, right? Because psychology means the way you think, right? The way you react basis the behavior. It's a Psychology is basically it's a state of mind or a study of mind, your behavior, right? It's a kind of mental discipline you have, right? So it is very important to understand this topic as a whole, and it's a very vast topic, right? Because each and every segment of life has different psychology, and we possess different behavior at each and every point of our life, right? तो बहुत important topic है psychology. And market psychology से पहले we should be clear with the journal psychology.
right? So general psychology, like I've told you, it is everywhere. Whether you are cooking, then there is some psychology involved. When you are driving, there is some psychology involved, right? The way you are driving, the way you are riding. So psychology, see, psychology means your state of mind. Your state of mind means in your mind you have some thoughts. Basis those thoughts drives your behavior, and your behavior drives your action, and your actions drive your success. तो ये तीनों का कनेक्ट है. वट एवर थॉट्स यू हैव इन योर माइंड, उससे आपका बिहेवियर वैसा बनता है. इफ यू हैव ए नेगेटिव थॉट, तो यू वुड हैव ए नेगेटिव बिहेवियर. इफ यू हैव ए पॉजिटिव थॉट, यू वुड हैव ए पॉजिटिव बिहेवियर. सिमिलरली, when you behave, right? So the way you behave, that decides your action course. तो जैसा आप बिहेव करते हो वैसा ही आपका एक्शन टाइप होएगा. नेगेटिव बिहेवियर ऑब्वियसली एक्शन जो है नेगेटिव साइड में ज्यादा रहेगा. पॉजिटिव बिहेवियर पॉजिटिव साइड में एक्शन ज्यादा रहेगा. देन अगेन बेसिस योर एक्शन आपका सक्सेस डिसाइड होता है. द काइंड ऑफ एक्शन यू टेक बेसिस योर बिहेवियर, एंड बिहेवियर डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे. सो आई एम अगेन रिपीटिंग दीज 4 वर्ड्स. थॉट प्रोसेस से सब कुछ स्टार्ट होता है in your mind, and then thought process or your thoughts leads to your behavior leads to your action leads to your success, right? And then again success वही फिर repeat होता रहता है पूरा. Okay. Now so Ayush, I'll be sharing my PPT. Just confirm whether is it visible to everyone or not. I'll be sharing that. Oh, it's visible, sir. It's visible. It's visible. Okay, great. Thank you very much. Is it visible? Okay. Okay. So guys, let's discuss. So I have I've collated some common aspects of market psychology in this presentation. So I'll share, being an investor, what should be your approach, right, to beat the or to have a good mental state in stock market, right? Being an investor or being a trader, your mental state is very important, right? Lesser or mental state में क्या हो सकता है? So one is doubt and one is your mental barrier, and there is a difference between doubt and mental barrier. Barrier is something which is stopping you to do something, or which is creating a challenge for you. आपको रोक रहा है बार बार, right? And doubt is something where you have less understanding. तो ये difference होता है doubt में और mental barriers में. और psychological चीजों को समझ के ये दोनों चीजों में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, right? तो आगे बढ़ते हैं. So before we start this presentation, so this is one of my famous quote which I had written in 2015, I guess. Yes, 2015. So in stock market, so there is a psychological so this is a psychological statement. Just decode it. So think what people don't think easily, do what people don't do easily, achieve what people don't achieve easily. Abhi, you can implement this quote in your personal as well as professional life, but to succeed in stock market, implementation of this quote is very important, because to succeed in stock market or to scale big heights, right, in stock market, you have to think something different. Again, you have to do something different from the people. So that would be your edge. आपका एज कैसे होता है? जब आप कुछ अलग करते हो भीड़ से हटके, राइट? तो अलग करने के लिए नीड टू थिंक डिफरेंटली, राइट? बट उसको रिवर्स फॉर्म में कैसे लिया गया है इस कोट में? वो सोचो जो जल्दी से लोग सोच ना सकें. So for an example, you are doing technical analysis of any particular stock, or you are doing fundamental analysis of any particular stock. तो वो एनालिसिस में कुछ चीजें ऐसी सोचो तो ज्यादातर लोग ना सोचते हैं. यही साइकोलॉजिकल एज क्रिएट करता है. ऑन ट्विटर आई रीड लॉट ऑफ योर कमेंट्स कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो ब्रेकआउट्स को या फंडामेंटल्स को कैसे रीड कर पाते हो, राइट? तो यही इस कोर्स से इंस्पिरेशन आता है उसका, राइट?
So whenever I analyze fundamentals or technicals, so I follow first and second line. So when we are analyzing the fundamentals or technicals of any particular stock, तो वो सोचो कुछ कॉमन चीजें तो सब लोग सोच लेते हैं कि पी इतना होगा या यू नो ये रेशियो ये है ये वो तो मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा और क्या चीज आप सोच सकते हो उस कंपनी के बारे में, राइट? तो यू नो समथिंग विच वेरी लेस पीपल नो, वो होना चाहिए। देन अगेन सोचने के बाद मेक योर एनालिसिस और मेक योर कन्विक्शन, और वो करो जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, राइट? एंड देन अगेन उसका रिजल्ट क्या होएगा? यू विल अचीव बट पीपल डोंट अचीव इजीली। So I would request, so this presentation will take around 40-45 minutes at least. Then उसके बाद just park your question, right? If you have any question related to the slide or market psychology, just park your question. I would love to reply your questions after this presentation, right? So, and I appreciate your patience for that. Okay, let's start. So so these are the topic which we are going to discuss in this presentation. First of all, when you start in the market, so your vision should be clear, your goal should be clear, right? Then know yourself. You should know yourself, who you are, what is your abilities, what are your abilities, sorry, and what is your what kind of attitude you have for stock market. Then write down your skills which you have and which you don't, right? Then control your emotions. How to manage your emotions we'll discuss specifically in stock market. And last, have a perfect work-life balance. Why work-life balance is important in stock market, specifically in stock market. तो इनका बहुत, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे स्टॉक मार्केट जर्नी पे। तो विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज सेट योर गोल एंड विजन। तो आप लोगों ने वो कोट सुना होगा, व्हेन यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, राइट, देन यू विल, मतलब आप कभी कहीं पे भी चले जाओगे, राइट? यू शुड नो योर डेस्टिनेशन, एटलीस्ट यू कैन प्रोजेक्ट योर डेस्टिनेशन कि आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years आई विल रीच देयर और आई हैव टू रीच देयर। आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। व्हाट इज योर विजन इन द स्टॉक मार्केट शुड बी क्लियर। पोर्टफोलियो सिर्फ ग्रो ही करना है, दैट इज नॉट ए विजन, दैट इज अ स्टेटमेंट, राइट? कि मेरे को ग्रो करना है, कितना ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है, वो पूरा गोल इज नॉट अ स्टेटमेंट, राइट? इट्स अ कंप्लीट समरी, व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू, राइट? तो ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल गोल कुड बी माई पोर्टफोलियो इज XXX and I want to take this portfolio at this level in next 5 years with the help of trading and investing, or with the help of investing only, or with the help of trading only। वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग करके करोगे, इन्वेस्टिंग से करोगे, दोनों चीज करके करोगे। देन वो आपने एक बार कर लिया, उसके बाद क्या करोगे उसके लिए? ट्रेडिंग करने के लिए करोगे तो कैसे करोगे, राइट? कितनी ट्रेडिंग, हाउ ऑफन यू ट्रेड, या इन्वेस्टिंग में क्या कौन सा प्रिंसिपल अपनाओगे, ज्यादा लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म किस टाइप का, या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करोगे। तो वो पूरा आपको बाइफरगेट करना पड़ेगा, चीजों को लिखना पड़ेगा। एक बार लिख लो, उसको बार बार देखोगे, आपके माइंड में वो स्टेटमेंट बन जाएगी, राइट? So this way your goal should be clear. I often meet lot of people, I often interact with lot of people in stock market, or always ask what is your purpose in the stock market। तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि मेरे को बड़ा कुछ करना है स्टॉक मार्केट, मेरे को पोर्टफोलियो ग्रो करना है, या मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, लेकिन कहाँ, कब, कितना, मतलब टाइम बाद, एग्जैक्टली क्या करोगे आप उसके लिए, राइट? अपने आप को तैयार कर भी पाओगे कि नहीं, वो सारी चीज किसी ने सोची नहीं होती है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, राइट? तो बस वो फिर उसमें आ जाते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए, टेक्निकल आना चाहिए, तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट एनफ, राइट? तो इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से राकेश झुनझुनवाला, तो फंडामेंटल एनालिसिस उनको, उनकी बहुत अच्छी होगी, तो उसी से सक्सीड नहीं हुए होंगे। और भी चीजें होंगी, इमोशनल वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने अपने आप को जो भी मिस्टेक्स हुई उनसे सीखा भी होगा, चेंज भी किया होगा, चेंज मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें तो विल डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इफ यू, आप लोगों ने अभी तक अगर अपना गोल नहीं बनाया है, या बना भी लिया है, तो उसको और रिफाइन करो। आई एम श्योर सब लोगों के गोल होंगे यहाँ पे मार्केट में, बिना गोल कोई नहीं आता है। अगेन दिस इज साइकोलॉजी,
राइट, बट उसको डिटेल्ड वे में बनाओ, राइट। नो योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। So, statement is very simple, know yourself, but if you go into it in this topic, it is very, wide topic. अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी एबिलिटीज क्या है, शुड नो। आपकी स्किल्स क्या है, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्किल्स हैं। आपका एटीट्यूड किस टाइप का है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू आर एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट, कैसे आप हो। इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, राइट। जनरली आई हैव फाउंड कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके सक्सेस के चांसेस थोड़े कम होते हैं। मतलब बड़ी सक्सेस की बात कर रहा हूँ, छोटी सक्सेस तो सबको अचीव होती है यहाँ पे, छोटी मोटी से लेकर जो भी अलग अलग उसका लेवल होता है। बट बहुत हाइट्स पे जाने के लिए बहुत कम ऐसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं होगे स्टॉक मार्केट में, आप बड़े लेवल पे जाने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, बिकॉज आप एक्सप्रेस करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, राइट। तो नो योर सेल्फ कि आप हो कैसे इंसान, राइट। इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी एबिलिटीज क्या क्या है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, एटीट्यूड किस टाइप का है आपका, ये आपकी कौन सी ईगो, आपकी कौन सी इमोशन वीक है, आगे बात करेंगे। कौन सी ईगो है वो बहुत जल्दी हर्ट होती है, इगोस्टिक भी लोग होते हैं। वो डिपेंड करता है किस कल्चर में पले बड़े हैं, वो तो उससे भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि वो बाय डिफॉल्ट आता है। उसके पीछे भी कारण होते हैं लोगों का, जो ईगो किन्हीं का हाई होता है, किन्हीं का मीडियम, किन्हीं का बिल्कुल बहुत कम लेवल पे होता है, राइट। तो डिपेंड्स अपॉन द कल्चर दे आर लिविंग इन, डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी दे आर लिविंग, बहुत सारी चीजें करती हैं जो उनका पूरा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप जहाँ जिस जगह से हुए हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है सारी चीजें, राइट। एंड एजुकेशन स्पेसिफिकली कि क्या एजुकेशन उनका बैकग्राउंड रहा है, तो वो भी, तो इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर सेल्फ कि मैं क्या हूँ, किस सोसाइटी में रह रहा हूँ मैं, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, और मेरी क्या वीकनेस है, और क्या सारी चीजें हैं, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, जो बहुत कम चीज, मतलब बहुत कम लोग शेयर कर पाते हैं। वंस यू नो योर सेल्फ कि what kind of person I am, don't share your trading goals with anyone. Don't share your trading goals with anyone. Means specifically in your family or in your society. Anyone means वो बंदा जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, या मार्केट की बहुत कम नॉलेज है, उसको इतना पता कि मार्केट है बस, राइट। आपने अपने गोल्स उसी के साथ शेयर करने हैं जिसको मार्केट में के बारे में अच्छा पता है, और जो एक्टिव भी है और सक्सेस भी मिली है, उसी के साथ शेयर करना। एल्स नेवर शेयर योर ट्रेडिंग गोल्स विद एनीवन एल्स, दैट पर्सन वुड बी अ मेंटल बैरियर फॉर योर करियर, राइट। अगर मैंने देखा कई बार कई लोग अपने वाइफ के साथ शेयर कर देते हैं, कई अपने फादर या मदर के साथ शेयर करते हैं कि आई एम डूइंग ट्रेडिंग, आई एम डूइंग ये वो, बट उनके मदर जो है, उनके फादर जो है, या उनके वाइफ है, उनको इतना समझ नहीं जितना आपको है, राइट। तो होता क्या है, वही लोग आपके मेंटल बैरियर बन जाते हैं, और उससे होता क्या है, कहीं ना कहीं बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, अगेन आपको डिस्करेज करेंगे एनकरेज करने की बजाय। तो ये सारी चीजें अपने को कंट्रोल करनी है यहाँ पे, इन द सेंस शेयर नहीं करना है, अपने आप को जानना है, और जान के डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्टॉक मार्केट में नुकसान कर सकती है। जैसे इंट्रोवर्ट मैंने बताया, इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनको बड़ा वो होता है, शुड बी एक्सप्रेसिव, राइट। देन इमोशन में मैं बात करूंगा, कौन सी इमोशंस होती हैं जिनसे बचना है, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। नो योरसेल्फ कि आपकी कौन सी वीकेस्ट इमोशन है, उससे तो दूर ही रहो, वो आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल दोनों में आपको नुकसान करेंगे, राइट। ओके, so let's move to next slide. Skills. तो स्किल्स की हमने बात करी थी, नोइंग योर सेल्फ, कि क्या क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्किल्स, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, राइट। तो हार्ड स्किल्स आर जनरली आपका ये जो इधर में आपका जो राइट हैंड ब्रेन दिख रहा है आपका, उसमें होती है, मतलब जनरली माना जाता है। वहाँ पे आपकी मैथ हो गया, डेटा हो गया, या ये कैलकुलेटिवनेस या एक्सपर्टीज यहाँ से बिल्ड होती है पूरी। सॉफ्ट स्किल्स में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो ये तो मोटा मोटा स्किल्स की बात रही, लेकिन फॉर मार्केट आपको क्या स्किल्स चाहिए,
first of all, write it down. So for an example, you need to have good analytical skills. You need to have good mathematical abilities. Then the researching skills आप research कर सको. Then that your subject matter expertise भी हो सकता है कोई. ये skills आपका कितना है, तो बहुत वो 7 से 8 skills जो है स्टॉक मार्केट में चाहिए होती है, आपको लिखनी चाहिए. एंड देन इमोशंस को कितना हैंडल कर पाते हो आप, वो सारी. तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव, यू नीड टू राइट इट डाउन, राइट. देन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मार्केट में चाहिए आपको, आपके में नहीं. तो फॉर एग्जांपल, टेक्निकल एनालिसिस करना भी एक स्किल होती है. तो इफ यू डोंट हैव, तो राइट इट डाउन कि आई लर्न दिस स्किल. फंडामेंटल एनालिसिस आपको नहीं करनी आती, फंडामेंटल्स के बारे में पता लेकिन करनी नहीं आती, तो वो भी एक स्किल है, राइट. तो उसको लिख लो कि मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस करनी सीखनी है नेक्स्ट 5-6 मंथ और 1 ईयर. वैसे तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहती है मार्केट में, बट जस्ट टाइम इट. टाइम करने से ये होता है कि इससे पहले आपको अचीव करना है. लेट मी शेयर माय एग्जांपल व्हाट आई डिड इन 2014. So when I was in the market, so starting first 1.5 year was totally confusing period, right? I was not able to focus on something, or I was not able to focus on anything, right? और अगर मैं फोकस भी कर रहा था, सब चीज पे कर रहा था, क्या ये भी करूँ ये भी करूँ. लेकिन बाद में पता लगा कि I need to focus on specific things. This is my skills. Then later I'll acquire all those skills which is required in the market. है ना? तो फिर I wrote down all the skills basis. So I took the help of my mentor or my friend. जो मेरे दोस्त थे वही लेके आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेरे को. So I wrote down all these skills, what kind of skills we need in stock market, and then I mark it down कि ये skills मेरे में हैं already, इनको और improve करना है, ये है नहीं, ये acquire करना है. एंड आई गेव अ टाइम ऑफ 1 ईयर कि आने वाले 1 साल में ये सारी स्किल्स मैं एक्वायर करूंगा, और जो ऑलरेडी स्किल्स आई हैड दैट टाइम उनको और इम्प्रूव करूंगा. देन व्हाट हैपेंड, आई वाज कंप्लीटली चेंज पर्सन इन 2015, एंड दैट वाज अ कैटलिस्ट ईयर फॉर मी, राइट, इन स्टॉक मार्केट, जब मैंने अपने आप को इस चीजों पे काम किया. एंड देन 2016 आई इम्प्लीमेंटेड माई लर्निंग, जो भी सीखा, चेंज किया स्किल्स के. वन ऑफ द बेस्ट ईयर आई हैड. देन 2017 अगेन, उससे भी अच्छा. 2018 और अच्छा. 2019 was okay, I would say bit challenging year, but trading portfolio did well, investing portfolio ठीक ठीक था, ठीक है. And then again 2020, again one of the best years, right, so far, right, specifically trading portfolio and investing also, right. There was a turbulence in March and April, but now it's all okay. So skills are important, and you need to write it down what kind of skills you need to have in stock market. Then mark it down which skills you already have, right, और किस लेवल तक है. अगर ठीक है लेकिन मजबूत नहीं है, तो उसको मजबूत करो, right. Very important topic, one of my favorite, and let me share you in advance, and I already shared in the YouTube as well. I'll make special video on this under our market psychology series, and next video will be on this only, the game of emotions, and I'll make at least 2-3 videos on this topic. It's a very vast topic, right. So as you know, you would have heard this statement or sentence ki human being is an emotional animal. आप लोगों ने सुना होगा बहुत जगह, राइट. यस वी आर, राइट, बिकॉज इमोशंस, तो मतलब इमोशन इज समथिंग जो एनिमल्स में भी होती है, बर्ड्स में भी होती है. आप लोगों ने देखा होगा, लॉट ऑफ यू गाइस वुड बी ओनिंग ए पेट इन योर एट योर होम, राइट. आप लोगों ने पेट रखा है, तो आप लोग देखते हो उनमें भी इमोशंस होती है, राइट. व्हेन यू कॉल योर पेट, को बुलाते हो नाम से, तो कितना भागे भागे आते हैं वो, मतलब. बट ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा इमोशंस होती हैं और स्विंग करती हैं, राइट. व्हाई डू वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द इमोशंस? बिकॉज मार्केट में जो स्विंग्स होते हैं इमोशंस के, बड़े फास्ट होते हैं. मार्केट इज समथिंग जो, मतलब, फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट दिस स्टेज, राइट. इफ यू आर एट दिस स्टेज, लेट मी, okay, so if you are at okay, so for example,
So Ayush, I am trying to use this annotation, but Just a second, sir. Just a second. So annotation is active. If you want, I can annote for you. okay. So for an example, like natural stage पे आप हो, for an example, you are resentful or playful. Market open हुआ और you are having this emotion. Axis Nifty ऊपर है. Let's say Axis Nifty is 100 points plus और market भी open होता है 100 points plus. But suddenly आपने देखा जैसे market खुला, after 10 minutes सारी उसने जो 100 points का जो gain था वो लॉस कर दिया. Now market is flat. अभी आप धीरे धीरे आपका जो मूड है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन की टाइप बढ़ेगा, सैड हो जाओगे, यार ये क्या हो गया अचानक. देन आफ्टर हाफ एन आवर आपने देखा कि नाउ मार्केट इज -50. आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50. नाउ मार्केट इज -50 पॉइंट, राइट. सो इन हाफ एन आवर व्हाट हैपेंड फ्रॉम +100 टू -50. देन आप बिल्कुल फ्राइटेंड हो जाओगे एक बार के लिए. तो आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, आपका इमोशनल स्टेट ऑफ जो स्टेट है वो चेंज होना ही होना है मार्केट को देख के. मतलब ठीक है, यू वुड कंट्रोल, बट एक बार तो आपका जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है ना, जो आपका इमोशन है वो चेंज होनी ही होनी है, राइट. यू वुड रीच एट दैट फ्राइटन स्टेज, राइट. उसके बाद सडनली कोई न्यूज आ जाएगी, राइट, कि ये, देन यू मे गेट एंग्री. यहाँ पे भी आ सकते हो आप, यार ये क्यों आई है, ऐसा क्यों है, मतलब व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट, क्यों हो रहा है ऐसा, सारी चीजें. तो this is a change of mood, or you can say swing in the mood due to emotion. तो मार्केट वो चीज है जहां पे सबसे ज्यादा फास्ट इमोशंस चेंज होती हैं, राइट, राइट. बिकॉज मार्केट इज समथिंग जहां पे मार्केट बिना बोले आपके इमोशन को चेंज कर सकता है, राइट. तो फॉर एन एग्जाम्पल, देर आर टू पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट. तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बोथ आर हैविंग गुड कन्वर्सेशन. सडनली एक बंदा दूसरे बंदे को अब्यूज करता है, गाली देता है. तो दूसरा बंदे का जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड क्या होएगा, वो भी एक बार तो वही सैड या शॉकिंग एकदम से. और वो फिर से अगर अब्यूज करेगा तो वो भी अब्यूज करने लग जाएगा, क्योंकि दोनों का जो रिएक्शन है, दोनों का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाएगा. पहले एक का हुआ, उसने अब्यूज किया, फिर दूसरे का भी कर देगा. तो करने में हम कर सकते हैं. तो इफ आई से समथिंग रॉन्ग टू एनीबडी, यहाँ पे किसी का नाम लेके मैं बोलता हूँ, तो वो बंदा थोड़ा ऑब्वियसली जॉली तो फील नहीं करेगा, राइट. तो दिस इज अबाउट ह्यूमन बीइंग. बट मार्केट तो मतलब इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. बट उसके बावजूद सोचो आप, इंडेक्स मतलब व्हेन यू सी द मार्केट, और वो आपके इमोशंस को कितना चेंज कर देता है, इतना फास्ट. इसलिए आई ऑलवेज से व्हेनेवर देयर इज अ वॉलेटिलिटी एंड इफ यू आर एन इन्वेस्टर, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट. बिकॉज जितना वॉलेटाइल ऊपर नीचे होएगा उतने आपके मूड स्विंग्स होंगे, और जितने मूड स्विंग्स आपके होंगे उतने ज्यादा आप बार बार ही सोचोगे, राइट. अगेन कम बैक टू दैट सेम लॉजिक. चेंज इन द मूड, दैट इज योर थॉट प्रोसेस, दैट विल लीड टू द बिहेवियर. आप कुछ बिहेव करोगे, बाय सेल इज अ बिहेवियर ना. और बिहेवियर और एक्शन में मतलब उसे बेच दोगे, उसका फिर रिजल्ट आ जाएगा, सक्सेस है कि फेलियर है ट्रेड का, राइट. या स्टॉप लॉस वो करोगे. तो whenever we see whenever there is a negative market, तो जो न्यूट्रल टू नेगेटिव इमोशंस है वो हावी हो जाती है, दिखती नहीं है बट हमारे माइंड में चलने लग जाती है. एंड वी नीड टू फाइट विद देम. देयर इज नो वे, राइट. वी नीड टू फाइट विद देम, वी नीड टू कंट्रोल. और फाइट भी कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हो. There is only one way is to control. Change your thought process. Either don't watch the screen. Think
व्हाई यू बॉट दैट पर्टिकुलर स्टॉक, वो सोचने लग जाओ, अच्छा मैंने इसलिए लिया था, ठीक। So let me share a very you know contemporary example. So we would have seen that correction in the first week of September, and then we had in that third week of September. उसमें आपने देखा होगा कितने स्टॉक्स से कितने बड़े बड़े स्विंग। तो इट स्टार्टेड इन 31st अगस्त, उसमें फिर बड़ा स्विंग आया, उसके बाद फिर वापस हम ऊपर गए। देन व्हाट हैपेंड, वापस से हम नीचे आए, राइट। इमोशनल स्टेट पे जितना आप कंट्रोल करोगे और जितना इनके बारे में जानोगे, उतना मार्केट में ज्यादा लंबे समय तक टिकोगे, ये सच्चाई है। इमोशनल स्टेट हेल्प्स यू टू एनालाइज लॉट ऑफ थिंग्स। आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो वहां पे भी, सो आई विल कम विद अ सीरीज ऑन यूट्यूब। जैसे ब्रेकआउट आता है तो वहां पे क्या इमोशंस होती है, ऑब्वियसली ब्रेकआउट में तो सारी इमोशंस यही वाली होंगी आपकी, प्लेफुल और जॉली मूड होएगा कि वाओ ब्रेकआउट आ गया है। स्पेसिफिकली इफ यू वुड बी होल्डिंग द सेम स्टॉक, आपने वो स्टॉक पहले से लिया हुआ और उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ गया तो और खुश हो जाओगे आप, यार और चलेगा, राइट। वो चीज है। और तो बेसिस बेसिस दैट और सिमिलरली ब्रेकडाउन आएगा तो क्या होगा, और आप वो स्टॉक ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो क्या होएगा, मतलब मार्केट में खबर आ गई कि ब्रेकडाउन हो गया बहुत बड़ा और ये तो बहुत नीचे जाएगा, एस्टोनिश टाइप की फीलिंग है एकदम पहले, तो क्यों हो गया, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दैट, ठीक है। देन उसके बाद ज्यादा एकदम से नीचे चला गया तो एंग्री कि ये क्यों नीचे जा रहा है इतना, राइट। यू ट्राई टू फाइट विद द पीपल जिनकी कन्विक्शन नहीं है और जो सेल साइड में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इमोशंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन स्टॉक मार्केट जर्नी, इन स्टॉक मार्केट जर्नी, राइट। और आई शेयर फ्यू इमोशंस, वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन मैं 5-6 इमोशंस आपको बताता हूँ, इन पे ही वीडियो बनाएंगे अपने स्पेसिफिकली, डिटेल में मैं वीडियो में बताऊंगा यूट्यूब पे कि कैसे इन इमोशन से आप फाइट कर सकते हो, बट मैं बता देता हूँ, मैंने ट्विटर पे भी डाला हुआ है ओपनली। वो 5-7 ऐसे इमोशंस हैं जो मार्केट में आपको टिकने नहीं देते हैं या आपकी जर्नी जो है उसमें चैलेंजेस क्रिएट करते रहते हैं, ये आपसे गलत डिसीजन करवाते रहेंगे। whenever you would have negative emotions in your mind, it would lead to wrong decisions or wrong behavior, right? Or again same action, or फिर wrong decision, wrong action, wrong behavior would lead to failure, right? So let me share few emotions जिनसे आपको हमेशा फाइट करना पड़ेगा till the last day of your market, जब तक आप मार्केट में हो। तो नंबर 1 is impatience. Again, it's a state of mind, right? तो impatience एक ऐसी इमोशन है जो बहुत सारी चीजें करवा देती है आपको, राइट। तो इससे आपको लड़ना पड़ेगा, यू कैन राइट इट डाउन। सेकंड इज योर फ्रस्ट्रेशन। अगेन वन मोर इमोशन जो, तो व्हेन यू वुड बी इन दैट फ्रस्ट्रेशन स्टेट ऑफ माइंड ना, तो वहां पे यू वुड ऑलवेज थिंक नेगेटिव, यू वुड ऑलवेज थिंक यू नो समथिंग, कि देर इज समथिंग अमिस। मतलब फ्रस्ट्रेशन में बंदा कभी भी अच्छा नहीं सोचेगा, राइट। वो बुरा ही सोचेगा और नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड वहां पे ज्यादा रहता है। थर्ड इज योर पेसिमिज्म। मार्केट में पेसिमिस्ट लोग कभी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। यस, एंड पेसिमिज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड जो सिर्फ मार्केट में नहीं, लाइफ पर्सनल लाइफ में भी इट अफेक्ट्स अ लॉट, राइट। तो पेसिमिज्म में तो रहना ही नहीं है। मतलब व्हेनेवर यू हैव पेसिमिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड, आपको लग रहा है, मैं वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि कब आपको लगना चाहिए कि मैं पेसिमिस्ट ज्यादा हो रहा हूँ। अगेन पेसिमिस्ट कौन होते हैं, जो बुरा सोचते हैं हर बार में, या उनको लगता है ये चीज होगी नहीं है, जो पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो वो हम जानेंगे यूट्यूब के वीडियो में, बट आई वुड से ये इमोशन तो पर्सनल लाइफ में भी आपको दूर रहना चाहिए, बिकॉज पर्सनल प्रोफेशन दोनों लाइफ को खराब करती है जब तक व्हेन यू आर पेसिमिस्ट, राइट। दुनिया के जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं सारे ऑप्टिमिस्ट होते हैं जनरली। देन नेक्स्ट इज योर very very important emotion. I don't know, I am sure you would agree with me, uh, that is jealousy, right? Now you would be surprised कि jealousy कैसे मार्केट में नुकसान करती है। तो jealousy होती है मार्केट में, right? We have a jealousy. किसी ने कोई स्टॉक ले लिया, मैं नहीं ले पाया, मैंने मिस कर दिया, राइट। तो कई बार jealousy होती है, यार इसके पास है मेरे पास नहीं। किसी का एंट्री प्राइस मेरे से 10% ऊपर है,
सॉरी नीचे है, मतलब फॉर एग्जांपल एनी पर्टिकुलर स्टॉक, your friend has bought it around 100 and you bought it around 115, तो वहां पे भी कई बार लगता है कि यार मैं 15% ना इससे कम कमाऊंगा। ऐसा क्यों भाई? एंट्री कांट बी सेम, राइट? कैसे सेम थोड़ा हो सकती है? कोई इज देयर एनी लॉ इन द मार्केट की सबकी एंट्री सेम होगी? हर किसी की एंट्री और एग्जिट अलग होता है, राइट? तो जेलसी, तो मतलब वेन एवर यू हैव जेलस फीलिंग, प्लीज गाइस थिंक समथिंग एल्स। जेलसी इज सच ए इमोशन जो आपको प्रोग्रेसिव कभी नहीं बनाएगी, राइट? वो अगेन अच्छे 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 जो फोरम्स होते हैं उनसे भी दूर होना चाहिए जेलसी। आपको लगेगा ये लोग खराब है, यहाँ से जाओ। तो जेलसी नहीं करना है यहाँ पे। वेन एवर यू फील जेलस, जस्ट थिंक कि यार ठीक है, तो एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन इट इन द वीडियो, जेलसी कैसे नुकसान करती है। और मैं आपको कुछ बड़े नाम भी बताऊंगा बिना नाम लिए कि कैसे उनकी जेलसी जो थी या जो उनका ये सब इमोशंस थे उसकी वजह से नुकसान हुए बड़े बड़े। वन मोर इमोशन जो बहुत जरूरी है, दैट इज शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर जिनका होता है। तो बहुत, हालांकि होता नहीं है, बट शॉर्ट टेम्पर्ड कई बार मार्केट बना देता है, राइट? So always, if you have this, if you have a tendency to get short tempered easily, so please guys improve this area, else short tempered लोग जो होते हैं मार्केट में, उनके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंज। और अगर वो गलती से ट्रेडर बन गए ना, तो फिर स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे, टारगेट कम हिट होंगे, याद रखना। मीन्स लॉसेस ज्यादा होंगे, प्रॉफिट्स बड़े कम होने। बिकॉज शॉर्ट टेम्पर्ड लोग वो लोग होते हैं जिनका जो मेंटल फ्यूज है बड़ी जल्दी उड़ता है। Thank you, Ayush, for this favor. You've written all these emotions right on the screen, so or on chat box. तो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग जो होते हैं ना, वो लोग के लिए मतलब आई वुड से मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है, राइट? योर सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और इट्स एन इमोशन, मतलब जो बहुत परेशान करती है, राइट? तो अगेन नो योर सेल्फ, सेकेंड टॉपिक जो मैंने बताया था कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलते हैं मैं पेशेंट बड़ा हूं, ठीक है, दैट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। वीकेस्ट क्या है? एंग्री जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हो, राइट? अगर आप फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग, बिकॉज फ्रस्ट्रेट बंदा कब होता है? जब उसकी पेशेंस टूटती है, तब फ्रस्ट्रेट होता है। कहते हैं ना वो, फिर आपने मूवीज में देखा होगा, मेरी आपने आपने सारी सीमाएं तोड़ दी, मेरे धैर्य की सीमा तोड़ दी है, तो वो गुस्से में आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, वो चीज है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कनेक्टेड, राइट? Okay, so this is a very vast topic. If you have any question, just park it, and I would love to answer in Q&A session, right? And to know more, you can subscribe to our channel. You know हमारा चैनल है स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट के नाम से, आप सर्च करोगे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसमें इन सबके वीडियोस अपने बनाएंगे स्पेसिफिकली। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कवरिंग दिस टॉपिक, एंड बहुत कम लोग इसको कवर करते हैं, मार्केट साइकोलॉजी को। तो आई विल कवर दिस टॉपिक स्पेशली फॉर यू, राइट? राइट, एंड एट यूट्यूब इट इज टोटली फ्री। So let me stop, annotate. Okay. Next is maintaining work-life balance. Very important, guys. बहुत important topic है ये. And there is a difference between your personal life and your professional life. If there is, if you don't set your priorities for your work and for your personal life, तो मतलब बहुत मुश्किल है। मैंने कई बार देखा है कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ जो होती है वो हैम्पर होती है, बहुत बहुत बड़े स्टेज, right? So you need to maintain a balance between your personal and professional life, right? Because if your personal life is good, then only your professional life would be at better place. अगर आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो ना तो आप ट्रेड कर पाओगे ढंग से, ना इन्वेस्टमेंट फोकस कर पाओगे, याद रखना, राइट? पर्सनल लाइफ आपको बिल्कुल, अगेन इमोशंस पे आ जाओ। पर्सनल लाइफ में अगर देर इज सम प्रॉब्लम इन पर्सनल लाइफ, और देर इज सम चैलेंजेस, देर आर सम चैलेंजेस इन पर्सनल लाइफ, देन you would face more challenge in professional life, right?
तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी अ वर्किंग प्रोफेशनल। आप लोग जब काम करते हो ऑफिस में, तो घर में जब कोई चीज सही नहीं होती तो ऑफिस में भी मन नहीं लगता, होता है ना ऐसा, राइट? तो सिमिलरली अगर इफ यू आर अ बिजनेसमैन, तो अगर पर्सनल लाइफ में कुछ खराब चल रहा होगा तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका मूड नहीं रहेगा, राइट? हमेशा यू वुड थिंक कि यार वो सब ठीक हो जाए एक बार, राइट, सो दैट आई कैन फोकस बेटर ऑन माई प्रोफेशनल लाइफ, राइट? नंबर वन। तो पर्सनल लाइफ का ठीक होना बहुत जरूरी है, और उसके ठीक होने के लिए यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। So what includes in your personal life? Your health, your leisure time, time with your family, time with your kids, right? आप कभी कभी टूर पे जाओ, राइट? यू नो वीकेंड पे कभी बाहर चले गए सिटी में, राइट? या फिर 3-4 महीना में कहीं लोकल टूर पे चले गए, या 6 महीना में कहीं नेशनल कहीं ट्रिप पे चले गए। बहुत सारे डेस्टिनेशन है इंडिया में, तो वो पर्सनल लाइफ का पार्ट होते हैं, राइट? उसके भी गोल्स होने बहुत जरूरी है। तो हाउ यू कैन मेंटेन ए वर्क लाइफ बैलेंस? तो लेट मी शेयर माय थीसिस ऑन दिस। मैं कैसे कर पाता हूँ? तो आपको अपने गोल्स को 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू डिवाइड योर गोल्स इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज योर पर्सनल गोल्स, राइट? देन इज योर प्रोफेशनल गोल्स, क्या है, अगेन स्टॉक मार्केट और या जहां पे भी आप काम कर रहे हो। एंड थर्ड इज योर सोशल गोल। तो पर्सनल गोल में आपके सारे वही पर्सनल गोल्स आ जाएंगे विच यू वांट टू अचीव पर्सनली फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। एक प्रॉपर लेजर टाइम, सारी चीजें, राइट? तो पर्सनल, प्रोफेशनल गोल एंड सोशल गोल। प्रोफेशनल गोल में व्हाट यू वांट टू अचीव प्रोफेशनली, वेदर इट इज इन योर बिजनेस और इन स्टॉक मार्केट, वो गोल अलग होना चाहिए। एंड थर्ड इज योर सोशल गोल। So like I have social goal ki I share my ideas, or I share my experience of stock market on Twitter, and now started sharing on YouTube as well. जितना मेरे को पता है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने स्टडीज करा है, इट्स माय सोशल, इट्स ए पार्ट ऑफ माय सोशल गोल, कि जितना मैं इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर सकूं। तो हो सकता है कुछ गलतियां मैंने करी, वो गलतियां वो ना करें, राइट? तो सीखने को मिलता है। तो और भी पर्सनल प्रोफेशन और भी सोशल गोल कई लोग के हो सकते हैं। आप किसी एनजीओ से जुड़ के उसकी हेल्प करते हो, कई लोग टेम्पल्स से जुड़ के उनकी हेल्प करते हो, तो बहुत सारे अलग अलग सोशल गोल्स होते हैं। तो ऐसे करके मेक डिवाइड योर गोल्स इन 3 पार्ट and decide what is your personal goal. Personal goal includes your own goal where you uh, want yourself to reach, and your family goals, आपकी फैमिली को आपने कहाँ क्या सारे सुविधाएं देनी है। एंड सेकंड इज योर प्रोफेशनल गोल। प्रोफेशनल गोल वुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, स्टॉक मार्केट ऐसा, राइट? दोनों अलग अलग कर सकते हैं। थर्ड इज योर सोशल गोल। तो वन मोर थिंग गाइस, सोशल गोल होना जरूरी है वैसे, राइट? दैट इज समथिंग जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो लेवल है वहां पे लेके जाता है। एज पर मास्लो हायरार्की ऑफ, जो उसकी हायरार्की पूरी बनी है ना, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, केस स्टडी फॉर यू, वो आप पढ़ना। टॉप मोस्ट पिरामिड का जो उसका पार्ट है, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ही आती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पर पहुंचने पे मदद करते हैं आपको आपके जो सोशल गोल्स होते हैं, याद रखना। ये भी साइकोलॉजिकल एक डेटा बोलता है, right? Yes. One more thing to balance your, work and your life. That is your hobby, right? So, like I generally tweet on Twitter as well कि your hobbies is something जो आपका behavior और बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है। और your hobbies make a big impact on your life, राइट? तो हॉबीज अलग अलग होनी चाहिए। तो पर्सनल हॉबी, जैसे हेल्थ में फिटनेस के लिए हॉबी क्या हो सकती है, मैंने बताया आउटडोर हॉबी, राइट? आप रनिंग करो, आप स्पोर्ट्स प्ले करो, कुछ आप योगा करो, दिस कुड बी योर पर्सनल हॉबी जस्ट टू स्टे फिट, राइट? अगेन प्रोफेशनल हॉबी क्या हो सकती है? तो यू वांट टू ग्रो इन द स्टॉक मार्केट, तो आप एक हफ्ते में क्या रिसर्च कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, राइट? एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, दैट कुड बी योर हॉबी, राइट? आप सेक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज देख रहे हो, दैट कुड बी योर हॉबी। आप सुबह सुबह इकोनॉमिक टाइम्स की ऐप या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दैट कुड बी योर हॉबी। एंड दैट हॉबी वुड हेल्प यू टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल इन स्टॉक मार्केट और wherever you are working, right? or you are dealing with, right? तो हॉबीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो लेट मी शेयर एन एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, then
you need to adopt some hobbies like सुबह उठना, practice करना. If you won't adopt these hobbies, then you won't be able to reach at a level of a professional cricketer. जो लोग पहुंचते हैं, कोई भी आप क्रिकेटर देख लो, विराट हो गया या सचिन, ये सब लोग की हॉबीज कोई ना कोई क्रिकेटिंग से रिलेटेड हॉबीज होती हैं. मतलब वेन एवर दे हैव स्पेयर टाइम, तो ये लोग जब क्या करते होंगे उस टाइम पे, सुबह नेट प्रैक्टिस करना, उठना, अपने बॉडी को फिट रखना, बिकॉज फिट रहना बहुत जरूरी है बीइंग ए क्रिकेटर. देन और लोग, ये लोग क्या करते होंगे, अपनी बैटिंग स्किल्स को सुधारने के लिए वीडियो देखते होंगे कि मैं कैसे बैट को घुमाता हूँ, क्या एंगल पे आता है कोच के साथ बैठ के, राइट. ये भी हॉबी में आता है. एनालाइज योर सेल्फ, राइट. या किसी और का बैटिंग स्टाइल देखते होंगे, कैसे शॉट मारता है. बॉलर का देखते होंगे, बॉलर किस टाइप की बॉल डालता है, तो मेरे को कैसे, तो ये भी हॉबीज में आता है. जितनी प्रोफेशनल हॉबीज आप अच्छी बनाओगे मार्केट के लिए, जो मार्केट में आपको हेल्प कर सके, उतना होएगा. हॉबीज अगर, हैबिट्स एंड हॉबीज अगर खराब रहेंगी आपकी, राइट, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन ए राइट थिंग, राइट. जैसे मैं बोलता हूँ कि कई लोगों की हैबिट होती है कि वो डाउ फीचर्स को ना, मतलब 10 बजे 11 बजे तक देखते रहते हैं. कई लोग तो बंद करवा के सोते हैं. रात को 2 बजे जब बंद होता है, 1:30 बजे जब बंद होता है ना स्टॉक मार्केट, वहाँ का, अमेरिका का, उसको बंद करवा के सोते हैं. आई एम टेलिंग यू बिकॉज एक दो बार मैं भी ऐसे सोया था. मैंने देखा पूरा उसको समझने के लिए लोग की करते क्या है. तो उस टाइम पे मैंने चैट करके देखा, कुछ लोगों के साथ काफी लोग एक्टिव थे जो बता रहे थे कि यहाँ पे इंडियन लोग की बात कर रहा हूँ मैं, तो बल्कि हमारा कोई मतलब नहीं है, जो बता रहे थे कि ये लेवल सपोर्ट तोड़ दिया, ये कर दिया, तो मतलब बंद भी करवा के सोते हैं, ऐसे भी है. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम इन रॉन्ग थिंग. वो हमारी हैबिट बन चुकी है और गलत जगह पे टाइम लगा रहे हैं. उतना टाइम अगर हम कुछ स्टडी करने में लगाएं तो, जैसे किसी मेरा दोस्त बोलता है कि जितना टाइम एक्सिस निफ्टी में और डाउ फ्यूचर्स देखने में एक इन्वेस्टर लगाता है, सॉरी, एक ट्रेडर लगाता है, या इन्वेस्टर भी कई लोग लगाते हैं, इन्वेस्टर टर्म ट्रेडर जो लोग होते हैं, तो उतना टाइम अगर वो आईएएस की स्टडी में लगाए, तो हो सकता है आईएएस का पेपर क्लियर करते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करते हैं. इतना टाइम लगाते हैं हम लोग देखने में. तो आईएएस का पेपर नहीं क्लियर करना है, बट हॉबीज एंड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन, हॉबीज अच्छी रहेंगी, हैबिट्स अच्छी रहेंगी, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू हैव अ प्रॉपर और गुड वर्क लाइफ बैलेंस, फॉलो टाइम मैनेजमेंट मॉडल. टाइम मैनेजमेंट मॉडल आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा. उसमें देर आर 4 क्वाड्रेंट: इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट, लेस इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, राइट, इंपॉर्टेंट, लेस अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट. और अपनी जो आपकी टास्क रहती है ना पूरे दिन की, इसको डिवाइड करो. आपको पता लगेगा आपका टाइम गलत जा कहाँ रहा है, राइट. तो ये ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, एंड आई विल शेयर दिस मॉडल ऑन ट्विटर एज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. आई होप बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी यहाँ पे, या जानने को मिली होंगी. सीखना तो धीरे धीरे होएगा इनमें. एंड यू वुड हैव रिटन these things down on your डायरी और नोटबुक, और आप इन पे और स्टडी करो. ये जो चीजें बताई गई हैं, दीज आर, लेट मी रिपीट, ये बहुत छोटे टॉपिक नहीं है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं. सेट योर गोल, राइट. देन नो योर सेल्फ, बहुत बड़ी चीज है. देन स्किल्स कौन कौन सी हैं, एक्सरसाइज करो. इमोशन, ये तो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है. एंड अगेन दिस वर्क लाइफ बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट. आपका वर्क लाइफ बैलेंस अगर सही नहीं है, स्टॉक मार्केट में आपके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, राइट. इवन अगर आप ट्रेडर हो ना, तो बिलीव मी, आप रॉन्ग ट्रेड्स लोगे अगर पर्सनल लाइफ सही नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं है तो. So I mostly active on Twitter. Now I am active on YouTube as well. Telegram, sorry guys, I'm not active. मेरा चैनल है, टेलीग्राम का चैनल होता है, तो उसमें मेरा चैनल है स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट के नाम से, बट मैं आई एम नॉट एक्टिव इन दैट चैनल, राइट. आई एम मोस्टली एक्टिव ऑन ट्विटर एज ऑफ नाउ, and I'll continuously active on Twitter. But YouTube is something where basis your request, basis your you know support and love, मैंने start किया है. Because on Twitter I can express my thoughts, right, जो भी मेरे रहते हैं. तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सबके लिए अलग हो सकता है. when you write something ना, तो इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत उसमें स्प्रिंग्स मिलेंगे. when you speak the same thing, अपनी आवाज से बोलोगे, तो इंटरप्रिटेशन गैप नहीं होता बाकी लोगों में, तो उसकी जो और अंडरस्टैंडिंग गैप भी हो जाता है. तो देर आर टू और थ्री काइंड्स ऑफ गैप, वैसे तो बहुत होते हैं. इंटरप्रिटेशन
एंड अंडरस्टैंडिंग गैप। तो इंटरप्रिटेशन गैप जब ज्यादा कब होता है, जब आपने कोई चीज लिख दी, स्टेटमेंट लिख दिया, अब उसको हर बंदा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टॉक लिख दिया ब्रेकआउट में, तो उसको इंटरप्रिटेशन सबका अलग होएगा, राइट। और अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी होगी, बेसिस कितना जानते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सिमिलरली सेम चीज अगर मैं बोलता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ या वीडियो डालता हूँ और बताता हूँ कि इसमें ये ब्रेकआउट आया और ये, तो वहां पे यू वुड बेटर अंडरस्टैंड, बिकॉज वहां पे अगेन मैं बोलूंगा तो मेरे इमोशंस, मेरी वॉइस, राइट, उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। रीजन बीइंग आई हैव चोजन दैट यूट्यूब, one of the good platforms to express your ideas and reach to the people. Thank you guys. So now Ayush, I guess we are good to go for Q&A session, right? So I will Okay, request. so if you want to take a 5 minutes break or 2 minutes break before the Q&A, so until that time we can brief the people about the different workshops that we do also. Sure, sure. So guys, we do around 2 to 3 such free workshops every month, and if you've joined through a link on Twitter or through the link floated by Sir, so you can click on the Google form link. Abhimanyu has just sent that link, and you can enter your details. And whenever we have another workshop, we have around 7 to 8 workshops lined up for the next 3 months, and we'll be sending you the link whenever we have such workshops. And we'll now be having a Q&A after 2 to 3 minutes. So whatever questions you have, either you have questions relating to the market or market psychology, then you can put them directly to Sir. And now I would suggest that you put your questions in the chat box. That would be easier for everybody. So we'll start the Q&A section now, sir. So I'll just put myself on mute, and the questions have started coming because. So first of all, thank you, Venkat, for your appreciation. And I wish you all the best if you like this presentation. And Ayush, thank you for sharing this YouTube link of my channel. So we shared a YouTube link when we sent out the presentations also. We share of all the speakers. We share the social link when we send out the presentation. When we shared our Thank you for share the the invite. Ayush. So nice of you. Okay, so thank you, Pratap. Thank you. Okay, guys, so now we'll have a quick 15 minutes Q&A session, 15 to 20 minutes, depending upon the questions we have. So we already have one from Mr. Sanjay. How to control emotions of greed and fear? So that is the first question, sir. How to control Emotions greed of and fear. greed and fear. Okay, so greed and fear depends upon your risk and reward, right? When you are ready to take more risk, right? So you'd have a more greed. जब रिस्क बड़ा लेना होगा ना, तो आपकी ग्रीड भी बड़ी होगी। रिस्क हम बड़ा कब लेते हैं? जब आपकी ग्रीड बड़ी होती है, राइट। अगेन फियर कब होता है? जब रिस्क बड़ा होता है, राइट। सो वेन एवर यू आर सिटिंग एट बिगर रिस्क, आपका रिस्क बड़ा है, आपने बड़ा कोई रिस्क लिया है, और आपका RNR, जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ, ऑलवेज चेक योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने रिस्क लिया है कि आई विल लूज 40% और 30% इन दिस ट्रेड और इन दिस इन्वेस्टमेंट, बट ये इन्वेस्टमेंट जो है ये मेरे को 100 से 150% गेन दे सकती है, तो उसका 1:5 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। तो वहां पे आपका रिस्क भी बड़ा है और रिवार्ड भी तो बड़ा मिल रहा है आपको। आप 30% का लॉस झेल सकते हो उसके लिए, बट इन रिटर्न व्हाट वुड यू गेट? मे बी मोर देन 100%, 150, और मे बी वो, बट इनिशियल कैलकुलेशन आपका वो है। तो ग्रीड फियर डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। व्हेन यू टेक बिग रिस्क, तो वहां पे ग्रीड भी ज्यादा होगा, फेयर भी ज्यादा होगा। जहां पे रिस्क कम है वहां पे आपका ग्रीड भी कम है और अगेन फियर भी कम होएगा, राइट। आपने जब छोटा रिस्क लेते हो तो वहां पे डर होता ही नहीं है, राइट। तो ग्रीड फियर को मैनेज करना है तो ऑलवेज चेक योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। जहां पे भी आपका RNR ज्यादा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ज्यादा है, जहां पे आप बड़ा रिस्क ले रहे हो,
स्टॉक ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में, तो याद रखना वो ट्रेड को संभालने के लिए आपको अपनी ग्रीड तो चलो ठीक है मैनेज कर ही लिए इसलिए आपने लिया, लेकिन फियर को मैनेज करना पड़ेगा। वहां पे आपको फियर, बिकॉज हो सकता है उसमें आप ज्यादा एलोकेट करो फंड या उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन ज्यादा दो, तो अगर वो स्टॉक चलेगा तो वहां पे ग्रीड भी बढ़ेगी या आपको ना खुशी भी होगी, लेकिन गिरेगा तो फिर वो फियर भी क्रिएट होएगा कि यार ये अकेला स्टॉक ऐसा ना हो पूरे पोर्टफोलियो को वो कर दे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर बार अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करो, और पोर्टफोलियो एलोकेशन भी सिखाते हैं कि बराबर एलोकेट करो, ज्यादा ओवर एलोकेशन किसी स्टॉक पे नहीं करना चाहिए, राइट, जो कई बार लोग कर देते हैं। Okay, and so now the second question is from Mr. Manoj. Sometimes we tend to liquidate the long-term portfolio once it is in downtrend, but not breaching the averages. How do you suggest we control it? Sorry, Some- could you repeat? Yeah, sometimes we liquidate the long-term portfolio once it's in downtrend, but not breaching the averages. How do you suggest we control it? So it depends upon your conviction, right? So for an example, whenever okay, so you need to understand the market cycles for that. अगर आपको, if you want कि in a downtrend and if you don't want to lose your winners, right? So you need to understand the market cycle, right? Right, and market cycles are of different types, right? Every asset has a different cycle. Every sector goes through a different cycle, or cycle lasts from 1 year to 10 year also, right? So for an example, crude is in a bear cycle. गोल्ड वाज इन ए बियर साइकिल टिल 2019। गोल्ड ने कब टॉप लगाया था आयुष? आई गेस 35,000 हमने 2013 में देखा था लास्ट ना, इफ यू रिमेम्बर, 12-13 में। Yes, sir. Yes, sir. देन उसके बाद हमने 2019 में देखा, तो 19 के बाद फिर जब वो हाई कटा और फिर 20 में हम जब आए, तो फिर आप देखो रीजन बीइंग गोल्ड इज रनिंग। गोल्ड क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है 8 साल का उसने एक प्रकार से हाईवुड से वुड लॉ ऑफ वनवास काटा है, वो उस बियर साइकिल में था, राइट। अब वो उसकी बुल साइकिल स्टार्ट हुई है, और मेरे ख्याल से उसकी जो बुल साइकिल है उसको लाख प्लस लेके जाएगी, और आप देख लेना, और मार्केट के साथ चलेगा। पीपल वुड बी थिंकिंग कि ऐसा तो कैसे हो सकता है कि मार्केट भी चले, इक्विटी भी चले और गोल्ड भी चले, लेकिन चलेंगे दोनों, आप देख लेना आने वाले सालों में मार्केट भी ऊपर जाएगा और गोल्ड भी साथ साथ में जाएगा। तो इट्स अ वेरी सिमिलर साइकिल विच वी हैड सीन इन इन दैट 2005 टू 2008 पीरियड, जिसमें गोल्ड और इक्विटी दोनों ऊपर गए थे, राइट। तो सिमिलरली सेक्टर्स की साइकिल्स होती हैं, वो समझो आप, आपका स्टॉक कौन से सेक्टर में है। तो अगर वो सेक्टर डाउन ट्रेंड से जा रहा है या मार्केट ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जैसे स्मॉल कैप और ये जो ब्रॉडर मार्केट था 2018 से अभी तक डाउन ट्रेंड में है, ना तो मिड कैप इंडेक्स ने 22,000 का हाई तोड़ा है, ना ही स्मॉल कैप इंडेक्स ने 9600 का हाई तोड़ा है। तो देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। हाँ, उनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई भी बना दिए। तो डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइकिल में चल रहा है और आपके स्टॉक में कितना दम है। तो आपका स्टॉक अगर राइट सेक्टर से, तो जैसे आई वुड से एफएमसीजी स्टॉक जो है उन्होंने तो नए हाई बनाए, आईटी स्टॉक्स ने नए हाई बनाए, सबने, बड़े वालों ने खासकर। फार्मा स्टॉक्स जो था वो 2009 से 15 के बीच में एक बहुत अच्छी बुल साइकिल में था, उसके बाद 5 साल कंसोलिडेशन में रहा, बेयर साइकिल बोल सकते हो। अभी एक नई साइकिल स्टार्ट हुई है, कहाँ खत्म होगी हमें पता नहीं है, पहला लेकिन हो चुकी है इतना कंफर्म है। और दूसरा कंफर्मेशन कब आएगा कि ये साइकिल और बड़ी हो सकती है? जब फार्मा इंडेक्स अपनी ऑल टाइम हाई को काटेगा, दैट वुड बी अराउंड 14,100 आई गेस। वो काट दिया और उसके ऊपर गया तो मान के चलो फार्मा इंडेक्स जो है आने वाले सालों में 25,000 28,000 भी चले जाएगा, राइट। जैसे एफएमसीजी इंडेक्स है अभी 32,000 के आसपास है। तो सोचो कि कितना पैसा फार्मा स्टॉक्स बना सकते हैं। तो इस टाइप से आपने साइकिल को देखना है। इफ साइकिल इज सारी ज्यादातर साइकिल्स अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपका स्टॉक भी नहीं बचेगा उस टाइम के लिए, तो नीचे जाएगा। तो आपको कंट्रोल करना है बेसिस द फंडामेंटल नॉलेज, और अगेन किस टाइप का वो साइकिल है। टुडेस टॉपिक वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दीपक। So Yes. there's another question by Mr. Srini. How do you avoid revenge trading? रिवेंज ट्रेडिंग, सो रिवेंज ट्रेडिंग कब आता है पता है? when something goes wrong against you, right? So whenever something goes wrong against you, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हिट होता है तो मतलब, तो टू अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग यू नीड टू अवॉइड, जो मैंने अभी बताया भी था स्टॉक मार्केट का नशा वाले वीडियो में, यू नीड टू अवॉइड दैट जिद्दी और स्टबननेस इमोशन, राइट। आपको जिद्दी नहीं होना है। when once your stop loss is taken by the market, you need to think, राइट, कि कहाँ गलती थी, मतलब बिल्कुल जंप नहीं करना है उसके बाद, राइट। रिवेंज कब आता है? जब आप जिद्दी बन जाते हो कि मेरा सौदा गलत कैसे हो सकता है, बट मार्केट आपको बोल रहा है अभी आप गलत थे,
आपका आरएनआर या तो फेवरेबल नहीं था, या आपकी एंट्री गलत थी, आपने बहुत जल्दी भांप लिया था उसको कि भाई ये तो ऊपर जाएगा। या फिर रिवेंज ट्रेडिंग कब होता है? व्हेन वी एंटर इन ए ट्रेड विद सम फैंटेसीज, राइट? जैसे मैंने उसमें भी बताया था कि हम लोग सोचते हैं कि ये ठीक है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और ये तो 10% तो आ ही जाएगा। पता लगा ब्रेकआउट में आपने एंटर किए और स्टॉक खड़ा रहा, उसके बाद मार्केट में कोई न्यूज आई, न्यूज की वजह से सारे स्टॉक गिर के मार्केट, वो स्टॉक भी गिर गया और आपका स्टॉप लॉस कट गया। वैसे तो मैं मना ही करता हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए जल्दी से, कभी बेनिफिट नहीं करता। ऑलवेज हैव एन एग्जिट स्ट्रेटेजी, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट वुड बी योर एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट, और टाइमिंग किस पे निकलोगे किसी को नहीं पता था ट्रेड से पहले। हाँ, वी कैन अज्यूम कि हाँ ठीक है इस लेवल पे निकलूंगा, बट गारंटी नहीं है कि आज निकलूंगा कल निकलूंगा, या हो सकता है वो लेवल आए ना उससे पहले स्टॉप लॉस हो जाए, या जहां पे भी आप एग्जिट करते हो। तो फैंटेसीज लेके नहीं चलनी है। वेन एवर यू हैव फैंटेसीज और आप सोचते ये होगा, और वो जब नहीं होता है, राइट, वो कहीं ना कहीं हमको बदला लेने का मन करता है कि ये कैसे नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में करूंगा, या ये लॉस हो गया तो उससे लेऊंगा, राइट। मैं कॉमन लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक 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 किसी बंदे से लॉस होता है, या आपको एक एक दुकान में आप जाते हो, वहां की सर्विस अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो उसका मतलब आप क्या करते हो? आप दूसरे दूसरे दुकान में जाके कोई उसका बदला थोड़ा ना लेते हो सर्विस का, उसको जाके बोलते हो कि ये नहीं है और वो नहीं है, बोलो। आप एक नया दुकान चूज करते हो कि चलो ठीक है यहाँ पे जाऊंगा, लेकिन एकदम से नहीं करते, सोचते हो काफी, राइट। तो वो बदले की भावना से नहीं करते हो आप, राइट, वो आप इस भावना से करते हो कि भाई ठीक है यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, राइट। तो बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं। रिवेंज ट्रेडिंग यू नीड टू अवॉइड, एंड हाउ टू अवॉइड इज द ओनली वे टू अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग इज टू थिंक व्हाई, वेयर वेयर यू आर रॉन्ग, राइट, कहाँ गलती हुआ है, राइट। और रिवेंज ट्रेडिंग लेने से पहले सोचना है कि अगर सेम गलती फिर हुई तो फिर अगेन कितना रिवेंज लोगे आप? मार्केट के साथ आप ज्यादा टाइम तक रिवेंज नहीं ले सकते हो। Okay, sir. So this is the question by Ashish and Pratap ji. So, any books that you recommend on market psychology? So there are 3 4 books which I often read, and I used to share on Twitter as well. One is Who Moved My Cheese, right? Number one. Number two is Rich Dad and Poor Dad. You And then can send me the list later if you want, sir. I'll just yes. forward it to everybody with Right. the recording and everything. I'll just Sure. forward on to The Magic of then Thinking Big. okay. Hmm. And then, sir, this question is again, Ashish, how do you avoid the fear of missing out? FOMO. Okay. So Ashish, a very simple reply. You can't enter in each and every bracket which is happening in the market, right? जब तक आप मार्केट में हो ना, until your last day, or just write down this thing on paper and keep it with you for 1 month or 2 month, आप फोमो भूल जाओगे। मतलब फोमो जो है, फोमो वुड नॉट अफेक्ट योर लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में यू कांट कैच ऑल द ब्रेकआउट्स, इट कुड बी फंडामेंटल ब्रेकआउट और टेक्निकल कुछ भी हो। तो लेट मी शेयर अ वेरी कॉमन एग्जांपल। झुंझुनवाला हैज अराउंड 30-35 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो, बट सारे स्टॉक्स तो नहीं है ना। अभी कितने स्टॉक्स मल्टीबैगर बने हैं मार्चलो से, लॉरस लैब हो गया, न्यूलैंड है, पता है कितने, वो झुंझुनवाला के पास है ही नहीं। आपको लगता है कि फोमो के चक्कर में वो इन स्टॉक को लेंगे? नहीं लेंगे कभी, राइट। जो उनकी होल्डिंग है, उनकी कन्विक्शन उनकी वहां पे है ना। ट्रेडिंग में ठीक है वो कुछ भी ले सकते हैं, वो अलग बात है, बट फोमो को कंट्रोल करने का एक तो ये चीज है कि हम सारे ब्रेकआउट नहीं कर सकते। दूसरा, मार्केट में आप जब तक हो, यू हैव टू मिस थाउजेंड्स ऑफ ब्रेकआउट, और इन नेक्स्ट 10 ईयर जस्ट जस्ट कंसीडर इट, और मान के चल लो, और ये मतलब जस्ट एक्सेप्ट इट, यू हैव टू मिस 10,000 ऑफ ब्रेकआउट इन स्टॉक मार्केट इन नेक्स्ट 10 ईयर। सारे मतलब एक साल में क्यों आयुष हजारों ब्रेकआउट आते हैं ना, ब्रेकआउट और मूव्स आते हैं, सारे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं हम? नहीं, डेफिनेटली नॉट सर। यू कैन नॉट राइड 2 बोट्स। 2 बोट में आप 2 अपने पैर अलग हाँ अलग जगह नहीं रख सकते, वो फिर स्प्लिट होंगी हाँ, तो गिरोगे ही पानी में, वैसे ही पानी टाइप में का ही जाने, सीन। हाँ। तो वही हाँ। है कि नेक्स्ट जस्ट कंसीडर इट कि आई विल मिस मेनी ब्रेकआउट्स इन माय लाइफ इन माय स्टॉक मार्केट, बट आई विल ट्राई टू कैप्चर ऑल द ब्रेकआउट्स इन द स्टॉक्स विच आर ट्रैकिंग। जो आप ट्रैक कर रहे हैं उनमें मैं कोशिश करूंगा कि उनके एटलीस्ट ब्रेकआउट्स जो हैं वो मैं कैप्चर कर लूं और मूव ले लूं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आई ऑफन शेयर देयर आर सम स्टॉक्स जो मेरे फेवरेट हैं।
दीपक नाइट्रेट हो गया, ये इनमें मैंने मतलब इतना ट्रेड किया है, साल में 4 से 5 मूव कैप्चर कर लिए, उसी में पैसा बन गया। लेकिन मूव्स उनमें आते हैं कम से कम 10, 12, 15, 20, 30 के करीब मूव आते हैं। अगर आप सारे उनके वीकली स्विंग्स अगर आप देखोगे, चेक करोगे जाके ना, तो 10 से 15 मौके देता है एक स्टॉक एक साल में, अगर बुल ट्रेंड में है तो आप 10 से 15 के 15 नहीं कैप्चर कर सकते। उनमें से 5 भी ठीक वाले कर लिए तो ठीक है, राइट। तो जिन स्टॉक्स को आप ट्रैक कर रहे हो उनमें मूव जो अच्छे वाले हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करो, रादर देन सोचो कि मैं तो लॉरेंस लैब ले ही नहीं पाया जी, अब तो निकल गया, अब लेऊंगा। तो कंट्रोल उसी से होएगा। जस्ट एक्सेप्ट इट कि ठीक है, मिस तो होना ही है। तो जो 10,000 ब्रेकआउट मिस होने उनमें से एक यही था, ये मान लो कम हो गया उनमें से, ये जो भी आपकी लिस्ट है। और ऑलवेज थिंक लाइक दैट, राइट। इफ आई मिस समथिंग तो ठीक है भाई, हो गया तो हो गया, हमारा गया क्या उसमें, ना तो हमने पैसा डाला उसमें ना कुछ और डाला, हो गया तो हो गया, क्या चीज है। आपको आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप लोग जिस ब्रेकआउट को राइड करते हो उसको भी तो हजारों लोग मिस करते होंगे, लाखों लोग मिस करते होंगे, सारे लोग थोड़ा ना राइड करते हैं, राइट। ग्रेट। Okay, sir, this is from Mr. Deepak. How to control one's emotion when you have missed the stop loss or are in under deep loss? So you can't book losses or nor keep holding. Basically, when you miss the stop loss point and are under a deep loss. So how do you control an emotion? Do you still sell the stock or do you keep holding? So there are two things. First of all, if you miss the stop loss, मतलब stop loss means I'm sure you he would be thinking कि that is the point जहाँ पे उनको exit लेना था, right आयुष? Yes, sir. And he missed that point. Okay, so that is his first mistake. वो उनका पहला मिस्टेक है, इनको वहां एग्जिट लेना था लेकिन ले नहीं पाया, ठीक है, मिस कर दिया। अभी वो मिस्टेक करने से प्रॉब्लम्स कितने बढ़ सकते हैं वो स्टॉक में, चेक दैट स्टॉक टेक्निकल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल, जो भी आप स्टडी फॉलो करते हो देखो कि और कितना नीचे जा सकता है बेसिस द टेक्निकल इंडिकेटर्स, कौन सी ईएमआ पे है या क्या हुआ है उसमें, एक्शन हो क्या रहा है, फंडामेंटल ज्यादा नीचे जा सकता है और कितना दूर गया है। तो दूसरी मिस्टेक मत करो फिर। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है या कुछ ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने में ये रिकवरी नहीं करेगा मेरे मेरे उस पॉइंट पे जहां से ये नीचे आया है, तो आपको फिर सेकंड मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। आपको फिर उसमें से एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको लग रहा है, इफ यू आर थिंकिंग कि एक स्टॉप लॉस मिस हो गया बट दैट कुड बी ए टेम्पररी थिंग, 1-2 महीने में हो सकता है मेरी कॉस्ट से भी ऊपर आ जाइए, देन यू कैन होल्ड, है ना। लेकिन आपको नहीं लग रहा है, यू आर कंफ्यूज्ड, आपको लग रहा है कि नहीं नीचे जाएगा एंड यू आर कन्विंस्ड, देन सेकंड मिस्टेक मत करो, फिर एग्जिट कर दो। नहीं तो वो सेकंड मिस्टेक होगी फिर और नीचे चले जाता है, ऐसा ही होता है। और एवरेज तो करना है मत, तो वो तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, राइट। Okay, sir. So this is another question. What is your viewpoint on growth stocks and value stocks, and what is your preference, growth or value? ग्रोथ। Okay, people answer था इसका actually वो तो सभी का growth है, but still people keep asking this on every workshop that I do. वैल्यू There is one वैल्यू में person. क्या होता है, वैल्यू में क्या होता है, ग्रोथ इज वेरी क्लियर, राइट। वैल्यू में साइकोलॉजी क्या होती है आयुष की, एवरी पीपल सो एवरीवन हैज हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वैल्यूएशन, राइट। किसी को पी बहुत हाई लगता है, किसी को वही पी लगता है बड़ा सही है यार ये तो, क्योंकि ग्रोथ आ रहा है स्टॉक में, ठीक है। किसी को लगता है यार बुक वैल्यू बहुत हाई है, किसी को लगता है नहीं यार ग्रोथ आ रहा है तो बुक वैल्यू तो हाई होनी चाहिए, राइट। तो There is वैल्यूएशन one में person ऐसे or बहुत the रहते other हैं। जो ये पूछता है, हर वर्कशॉप में पूछता है, तो वो और हर किसी का आंसर ग्रोथ ही होता है, बट ठीक है, हाँ, वो उनका पूछना बट काम है तो मैं इसलिए speak कर गया। आई वुड प्रेफर ग्रोथ स्टॉक, बिकॉज ग्रोथ स्टॉक में कोई बायस नहीं रहता है, ग्रोथ कर रहा है दिख रहा है, हाँ भी ग्रोथ आ रही है। वैल्यूएशन हो सकता है थोड़ी चीप हो या हायर साइड पे हो, लेकिन अगर ग्रोथ आ रही है तो वो आपको रिटर्न देगा देगा, अनटिल अनलेस ग्रोथ इज देयर। बट वैल्यूएशन कब कैच करेंगे ना, उसको आप टाइम नहीं कर सकते हो। आपने भी आयुष देखा होगा अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में, कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं और लोग उनको ले लेते हैं और वो 1 साल तक अंडर वैल्यूड ही रह जाते हैं, होता है ना ऐसा बहुत बारी। लेकिन ग्रोथ स्टॉक नहीं रहते एक जगह पे। Yes, sir. Okay, sir. So this is a question by Mr. Aman. Is there a possibility of crash after the US election? You can avoid the question if you want, because again, this is something like a fortune teller thing. But like he asked, so मैं पूछ रहा हूँ इसलिए. देखो, पॉसिबिलिटी तो किसी की भी हो सकती है आयुष, इन स्टॉक मार्केट एनीथिंग कैन पॉसिबल। आई ऑलवेज से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो आप फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग टुडे एंड देयर इज सडनली कुछ
इंडिया चाइना बॉर्डर के फ्रंट पे कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, सपोज करो, राइट? आई वुड आई विल प्रे कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हो जाता है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? चाइना की साइड से कुछ मिशीवियस एक्टिविटी हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है उस तरफ से, तो क्या होगा फिर? हमको नहीं पता ना ये चीज, तो उससे मार्केट गिर सकता है, या बड़ा कुछ होता है तो ज्यादा गिर सकता है, 20% भी गिर सकता है, लोअर सर्किट भी कर लगा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। तो वी कांट टाइम दीज इवेंट्स कि क्रैश कब होगा कब नहीं होगा, बट व्हाट वी कैन डू, फंडामेंटली अगर आप देखोगे कि क्रैश कब आएगा कब नहीं आएगा, तो क्रैश कभी बता के नहीं आता है, राइट? क्रैश तब आता है व्हेन देयर इज ए बबल इन द मार्केट। मैं बता सकता हूं आपको कि क्रैश आता कैसे है। व्हेन देयर इज ए बबल इन द मार्केट, बबल इन द एसेट्स, ठीक है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच होगी हो, ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा हो गया हो मार्केट में, राइट? कोई जल्दी से उस बबल को देख नहीं पा रहा है, और सडनली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर क्रैश स्टार्ट होता है, राइट? तो इतनी जल्दी नहीं आता है। एवरीबडी इज थिंकिंग कि नवंबर के बाद क्रैश आएगा, बट मेरे को लगता है कि क्रैश जब भी आना होगा आपको बता के नहीं आएगा कभी भी। तो डोंट टाइम द क्रैश, ऑलवेज चेक द वैल्यूएशंस कि वैल्यूएशंस जहां पे स्ट्रेच हो रही हैं, ऑलवेज बी कॉशियस, राइट? दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगेन, कि किसी का रिस्क रिवॉर्ड हाई है तो वो कॉशियस का लेवल उसका कम होएगा, राइट? वो बोलेगा ठीक है भाई, आएगा तो 10% आई कैन बियर, 20% आई कैन बियर। और कोई बोलेगा भाई मैं तो, मेरे तो 10% यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मेरा तो पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं आई कांट बियर दिस एंड आई विल एग्जिट, राइट? दूसरा, व्हाई पीपल आर प्रोजेक्टिंग दिस, और व्हाई देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन, आई वुड से रादर देन क्रैश, देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत है 2-3 महीना में अभी, कि ईयर सिलेक्शन में कौन जीतेगा, और जो भी जीतेगा वो क्या पॉलिसी लाएगा, वो पॉलिसी वर्ल्ड के लिए, अमेरिका, चाइना और ये जो भी है ग्लोबल स्केल पे क्या इम्पैक्ट लेके आएगी, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, राइट? एक इकोनॉमी वहां की कब रिवाइव करेगी एक्चुअली, तो अनसर्टेनिटी की जो है ना, वो मार्केट को कभी अच्छी नहीं लगती है। अनसर्टेनिटी स्टॉक में भी रहेगी, उस स्टॉक को गिरा देगा, देख लेना मार्केट, राइट? मार्केट को क्लैरिटी पसंद है हमेशा, तो वेन एवर देर इज ए क्लैरिटी तो मार्केट कभी जल्दी से करेक्ट नहीं करेगा, एंड वेन एवर देर इज ए देर इज एन अनसर्टेनिटी, तो मार्केट वहां पे थोड़ा या तो करेक्ट करेगा या रुक जाएगा, वो चीज क्लियर होने पे। तो अगर वो चीज क्लियर होती तो फिर उसके हिसाब से डिसाइड होती चीजें। Okay, so this is a very interesting question has asked it. How do you manage your emotion when your stop loss has hit, you are out of the trade, and then your target is achieved? Your stop loss is hit, you get out of the trade, but after that, the हाँ, target on the trade is still achieved. तो पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कभी, मतलब 2015 से पहले हुआ होगा आयुष, क्योंकि आई डोंट कीप स्टॉप लॉस फॉर एनी ऑफ माय ट्रेड, बट आई ऑलवेज कीप एन एग्जिट प्लान फॉर दैट ट्रेड। तो लेट मी शेयर, मैं एक प्लान बताता हूँ आपको। अगर मेरा ट्रेड लेट से मैंने 3-4 हफ्ते के लिए लिया हुआ है, एंड आई वेंटेड एट 100 रुपीज, और ठीक है, स्टॉक भी 105 गया, 110 गया, चल रहा है, या 100 पे खड़ा है, जो भी है, मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गई, उसकी वजह से मार्केट गिर गया और स्टॉक गिर गया, तो मैं जल्दी से एग्जिट नहीं करता हूँ, बिकॉज मार्केट जब गिरेगा तो स्टॉक ने गिरना ही है। आप कैसे बचा सकते हो उस स्टेज में? अगर आप निकल जाओगे तो ये चीज होनी ही होनी है कि मार्केट गिरा, स्टॉक गिर के 92 पे आ गया, आपने स्टॉप लॉस ले लिया, पता लगा आपका जो स्टॉक है वो कुछ दिनों बाद 110 पे मिल रहा है आपको। ऐसा होता है बहुत सारी। लेकिन लेकिन एग्जिट प्लान किस लिए रेडी रखना है? मार्केट नहीं गिर रहा है, आपका स्टॉक पहले तो खड़ा है, फिर मार्केट चल भी रहा है, उसके बावजूद आपका स्टॉक गिर रहा है, तो आपको वहां पे कॉशियस होना चाहिए कि 96 आ गया मार्केट, लेकिन ऊपर है, 95 आ गया ऊपर है, तो पता लगाओ कि वो रीटेस्ट है कि क्या है क्या नहीं है। तो वहां पे आपको एग्जिट प्लान रेडी रखना चाहिए कि मार्केट स्टेबल है, ऊपर है, उसके बावजूद मेरा स्टॉक क्यों गिर रहा है। अच्छा, एक कनेक्शन कोरिलेशन और कर सकते हो। मार्केट गिर रहा है, ऊपर है, हो सकता है सेक्टर गिर रहा हो, जिस सेक्टर में आपका स्टॉक है वो, मतलब लेट्स से फार्मा सेक्टर गिर रहा है, तो ऑब्वियसली सेक्टर गिरेगा तो स्टॉक सारे गिरेंगे उस सेक्टर के, तो वो भी हो सकता है। लेकिन सेक्टर भी प्लस में, मार्केट भी प्लस में, लेकिन आपका स्टॉक गिर रहा है, वहां पे एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए कि भाई या तो मैं एग्जैक्टली 95 आ गया वहीं निकल जाऊं, या फिर इफ देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंस 97 98 जहां मर्जी हो वहां निकल जाऊंगा। तो ये आपको झंझट झेलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इनका क्वेश्चन है वो होता किस लिए, उसका आंसर मैंने फर्स्ट वाले एग्जांपल में दिया था कि हम एक्चुअली टारगेट करके रखते हैं लेवल को कि 92 इज माय स्टॉप लॉस, 90 इज माय स्टॉप लॉस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज आ गई, करेक्शन आ गया,
ठीक है, तो अल्टीमेटली स्टॉक ने तो गिरना ही है। तो वहां पे क्या हुआ, 90 पे हो सकता है एक स्विंग लो मार के आ गया हो, वहां पे उसकी 20 एम आओ 50 एम आओ और मार के, और आपका स्टॉप लॉस काटा उसने, थोड़ी देर रुका, 92 पे बंद हो गया, अगले दिन आपने देखा कि 96 98 आ गया, फिर मार्केट स्टेबल हुआ तो पता लगा वो तो 110 चला गया। तो ऐसे करके होता है ये कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और आपका टारगेट जो है वो कुछ दिनों बाद हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस जो है, आई विल मेक ए स्पेशल वीडियो फॉर दिस थिंग, हाउ टू अवॉइड दिस स्टॉप लॉस मेंटेलिटी गाइस। ये बीइंग ए साइकोलॉजिकल एनालिस्ट, मैं भी नहीं बिलीव करता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है फिक्स रखना चाहिए एक जगह पे। लोग ना लेवल बड़े टारगेट करते हैं, बट अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 70, वी आर 71। तो लेट मी रिवील अ सीक्रेट। लोग बोलते हैं ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये वो है। तो आयुष एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं, Yes, sir. अगर स्टॉक में सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, और स्टॉक की लेट से उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट है या जो उसका नंबर ऑफ लिस्टेड शेयर, लेट से एनबीसीसी यार, ये जो छोटे वाले स्टॉक है जिनमें 300 करोड़ से ज्यादा इक्विटी लिस्टेड है या फ्री फ्लोट में है यहाँ पे मार्केट में, ये स्टॉक्स में 10 पैसे पे भी रेजिस्टेंस हो सकता है, हर 10 पैसे पे, राइट। और क्यों, जहां पे सप्लाई ज्यादा है, लेकिन जहां पे डिमांड है ना, डिमांड, राइट, तो हर 10 पैसे पे आपको बायर मिल जाएगा। सिमिलरली जो बड़े स्टॉक्स हैं, तो वहां पे हर 1 रुपए पे, एवरी 1 रुपीज हैज रेसिस्टेंस। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कि कोई स्टॉक है उसको हर 1 रुपए पे बेचने वाले इतने खड़े, इतनी सप्लाई है, तो आपका एक एक रुपया रेसिस्टेंस बन जाएगा वहां पे। आपको एक एक रुपये, मतलब एक एक रुपये बढ़ने के लिए स्टॉक को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा कोई फंड आके घुसेगा तभी जाके वो स्टॉक चलेगा, राइट। तो ये रेसिस्टेंस सपोर्ट की मेंटालिटी भी लोगों ने बना रखी है। हमको रेसिस्टेंस सपोर्ट भी बड़े वाले ढूंढने चाहिए, कि कहाँ पे बड़ी सप्लाई आ सकती है, वही मेजर बैरियर्स होते हैं, और कहाँ पे बड़ा सपोर्ट आ सकता है, वही उन्हीं को टारगेट करना चाहिए। बीच में तो रेसिस्टेंस कहीं पे भी आ सकता है, राइट। ये सारी चीजें हैं, तो थिंक व्हाट पीपल डोंट थिंक इजली, ये इसके पीछे मोटिव है। व्हाट डू यू से आयुष अबाउट दिस? Definitely, sir. Definitely. डू Uh, बिलीव सो? डेफिनेटली मैं तो सर एक्चुअली फंडामेंटल्स पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, सो मोस्ट ऑफ दिस इज न्यू टू मी, द रेजिस्टेंस एंड राइट। सपोर्ट पैरामीटर्स। बट यहाँ काफी सारे टेक्निकल people are also there, some technical analysts are also there, so I'm sure they will agree and वो they can write yes or no here in the यस। chat box if they are in agreement with you. So I would suggest they should write that. This राइट। next question is from Mr. Amit Desai, and he is asking which are the top three bullish trending sectors for the next 3 to 5 years. Which three bullish trending sectors, which three sectors are you bullish on for the next 3 to 5 years? And also IT sector index. What is all-time high after which it will be very bullish for the next 3 to 5 years? So I guess IT sector is in a consolidation mode, and I guess there are a lot of disruption. We are going to see in IT sector. Now you would be surprised why I'm saying so. Because the way we are changing in the technology, right? For example, अभी कल ही सुंदर पिचई का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, उन्होंने क्या बोला है कि वो छोटे छोटे जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑनलाइन, उनको टारगेट कर रहे हैं, एंड देव कुछ उनका फंड वगैरह का प्लान है कि छोटे छोटे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सारों को वो लोग मतलब इतना सपोर्ट करेंगे कि सबको ऑनलाइन ले आएंगे। तो अब उससे किसको नुकसान हो सकता है, या आप कह सकते हैं इम्पैक्ट हो सकता है, इंडिया मार्ट को, जो डोमिनेटिंग प्लेयर है इंडिया में। तो डिसरप्शंस आईटी में भी बहुत आएंगे, द वे वी आर गोइंग फॉरवर्ड, और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें जो लीडिंग कंपनीज हैं जिनके पास फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं वही स्टे करेंगी। जो पुरानी टेक्नोलॉजीज होगी ना, वो कंपनी को थोड़ा मतलब बिजनेस करने में दिक्कत आएगा। तो सेक्टर पे बुलिश मत होना, कंपनीज पे बुलिश हो आईटी में। और 2-3 सेक्टर्स वेयर आई एम बुलिश, तो वन इज स्पेशलिटी फार्मा, नॉट सारा फार्मा नहीं, स्पेशलिटी फार्मा, सीडीएमओ स्पेस जो है आपका स्पेसिफिकली वो। स्पेशलिटी फार्मा मतलब जैसे एपीआई है, तो वन इज योर प्राइमरी एपीआई जो बनता है, वन इज स्पेशलिटी It's एपीआई। like Syngene and everything. You're talking about हाँ, CRAMS and यस, CDMO. यस, यस, जिनके पास बहुत मतलब सिंजिन के पास बहुत सारी चीजें जो पेटेंटेड है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ईयर, आपका जो इसका डायबिटीज के लिए हो गया, इंसुलिन हो गया, इसके प्रोडक्ट्स उसके पेटेंट है। तो इनका जिन कंपनीज के पास पेटेंट होता है और ये सब चीजें होती हैं या राइट्स कॉपीराइट्स होती हैं, तो इनको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता जल्दी से। तो ऐसी कंपनीज पे रहो। फार्मा हो गया। अनदर सेक्टर वेयर आई एम बुलिश इज मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में बहुत आगे जाना है, राइट।
basis our infrastructure demand and basis the kind of change I am observing on ग्लोबल इंडेक्स। तो इंडिया का जो मेटल शेयर है बहुत कम है अभी तो, क्योंकि 50% तो चाइना ही बनाता है पूरे वर्ल्ड का स्टील। इंडिया तो मेरे ख्याल से आई गेस इट वुड बी अराउंड 14-15%। तो इंडिया तो बहुत राइज कर सकता है यहाँ पे, राइट। और ये डंपिंग डंपिंग जो हो रही थी। एंड थर्ड इज योर कंजप्शन में केमिकल भी आ गया, आपका मिक्स हो जाएगा, एफएमसीजी भी आ गया। जो भी कंज्यूमेबल चीजें हैं या जो भी आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की चीजें हैं वो भी बढ़नी है, लग्जरीज वगैरह, तो ड्यूरेबल्स हो गए। तो ये कंजप्शन की 3-4 थीम है, ये इनमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने बताया था वी गार्ड हो गया रूरल थीम को पे करने के लिए, ये हैवेल्स हो गया बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये ऐसे करके जो लीडिंग कंपनीज, अच्छी कंपनीज है, ये पिक कर सकते हो थर्ड थीम। तो थर्ड इज मिसलेनियस, यू कैन से। यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर को छोड़ के स्टॉक्स पिक करने पड़ेंगे कंजप्शन में। Sir, there are two questions, sector questions, so I'll club them together. One is by Mr. Mukesh and one is by Mr. Sanjay. You said right now on Google bringing in distributors online. So if small companies come online, it will boost the IT sector, shouldn't it? So it should be bullish for India Mart. He's saying, shouldn't it be like he couldn't get your point. The second is by Mr. Sanjay. He's asking whether the Whether party the is parties over in are, the in the absolutely. pharma sector and your view on the textile sector. तो आई विल रिप्लाई टू फर्स्ट मुकेश जी का जो क्वेश्चन है ये वाला। सो ऑब्वियसली इट विल बूस्ट आईटी सेक्टर बट नॉट ऑल स्मॉल कंपनीज ना, सारी को टेंडर थोड़ा मिल जाएगा उसमें, राइट। सेक्टोरियल तो सेक्टर इज वेरी वास्ट, छोटा नहीं है, बहुत कंपनीज है इसमें, सबको बूस्ट नहीं करेगी। और इंडिया मार्ट को इसलिए कर सकता है बिकॉज इंडिया मार्ट का जो आप बिजनेस मॉडल स्टडी करोगे तो इट्स एन एसेट लाइट मॉडल, राइट। बट अगेन अगर उसके कस्टमर्स वहां शिफ्ट होते हैं, राइट, जो भी इंडिया मार्ट के कस्टमर्स हैं, जो भी उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए छोटा सा डिस्ट्रप्शन हो सकता है। अभी उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी इंडिया मार्ट की क्या होगी, दैट विल डिसाइड कि इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है ना भी करे, हो सकता है कर भी दे, बट बीइंग अ फंडामेंटल एनालिस्ट आपको सोचना तो पड़ेगा भी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल को रिलायंस की भी हो सकता है 5 साल बाद कोई स्ट्रेटेजी वो कर दे, जरूरी थोड़ा है। मार्क मतलब आप ही सोचो, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, राइट। जब कोविड जैसी पैंडेमिक किसी ने सोचा नहीं था, वो आ गई, तो मतलब कुछ भी चीज और इतनी सारी चीजें डिस्टर्ब होगी तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम कह नहीं सकते कि ये चीज नहीं हो सकती यहाँ पे, राइट। तो थोड़ा कॉन्टेनियर व्यू भी होना चाहिए कि भाई हो सकता है, अगर होएगा तो कैसे होएगा, देन यू वुड थिंक एंड यू वुड रिसर्च ये चीजें। फार्मा सेक्टर की पार्टी सर ओवर नहीं हुई है। देर आर 2-3 रीजंस। नंबर 1, अगर आप कोविड के बाद देखोगे तो सबसे पहला तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो फार्मा, क्योंकि अर्निंग सबसे बढ़िया फार्मा सेक्टर की आई है, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में भी फार्मा सेक्टर की अर्निंग्स बढ़िया आनी है, अब वो आप ची कोविड को करो ची किसी को बोलो। नंबर 3, फार्मा सेक्टर का जो इंटरेस्ट या जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है या जो फंड मैनेजर का इंटरेस्ट है वो भी फार्मा इंटरेस्ट में सेक्टर में ज्यादा जाएगा, बिकॉज अर्निंग्स है वहां पे सर, राइट। और नंबर 5, अगेन साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि फार्मा सेक्टर अब ओवर हीटेड हो गया, अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो पार्टिसिपेशन लेवल मेरा मानना है अभी भी डर के माहौल वाला है। मतलब लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं इसमें लेकिन निकल जा रहे हैं यहाँ से। तो फार्मा सेक्टर क्या हो रहा है, लाइट ही रह रहा है ज्यादातर। तो यहाँ पे फंड मैनेजर ज्यादा पैसा है और वो बाई करी जा रहे हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर दिस लॉरेस लैब। आप देखो क्या रन दिया उसने, 800 के नीचे, मतलब सबको लग रहा था ओवर हीटेड हो गया, करेक्शन आएगा, कुछ नहीं हुआ। फंड्स ने एंट्री ली, आप जाके देखना चार्ट पे भी दिख जाएगा, डिलीवरी जाके चेक कर लेना। जो उस टाइम पे जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग आई थी उसकी लाइफ टाइम की सबसे बेस्ट बाइंग थी, राइट। उसके बाद वो नीचे गया ही नहीं वहां तक, कभी 1000 तक गया था, फंड्स ने फिर ले लिया उसे, बिकॉज उनको पता है कि इसकी अर्निंग विजिबिलिटी नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स की बहुत स्ट्रांग है। तो और इतने 4 सालों 5 सालों बाद सूखा खत्म हुआ उसमें, राइट। और लोग कॉन्टेरियन हो गए थे बड़े। तो ये सारी चीजों को आप अगर अवॉइड करोगे तो फार्मा में भी पैसा बनता रहेगा आने वाले 5-6 महीने एटलीस्ट। और उसके बाद हो सकता है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना पड़े। वेदर यू सजेस्ट दैट टू डू मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन इज वेरी सर, मेडिटेशन इज गुड फॉर पर्सनल प्रोफेशनल बोथ, दोनों लाइफ के लिए अच्छा है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई राइजिंग सेक्टर्स, अगेन चेक द फंड फ्लो। एनएससीपी के ऊपर सेक्टोरियल रिपोर्ट आती है, चेक करो सर, हिंट दे सकता हूं मैं। मेडिटेशन, Meditation question is done. How to check rising sector is done. So now I don't think any other question is left. वन मोर क्वेश्चन Textile, आयुष, लास्ट textile ये है sector.
Yeah. टेक्सटाइल का रह गया था, तो आई एम बुलिश ऑन टेक्सटाइल बट सेक्टर, बट बी स्टॉक स्पेसिफिक, राइट। वो कंपनीज लो जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, जो मतलब B2C के बिजनेस में है, राइट, जो कस्टमर को डायरेक्ट बेच रही है, लाइक शॉपर स्टॉप हो गया आपका, या आप ट्रेंट ये हो गए, ये रिलैक्सो हो गया। रिलैक्सो पहले B2B था, पर अभी B2C में 4-5 सालों से पूरा कर रहा है, नए शोरूम आ रहे हैं। तो आप हालांकि रिलैक्सो टेक्सटाइल में नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो कंपनीज में जाना जो B2C में डील करती हो, मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है वाया शोरूम, बिकॉज वहां पे मार्जिन ज्यादा है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और किसी के ऑर्डर के भरोसे बैठी है, अरविंद हो गया, ये हो गया, मेरे ख्याल से ये अवॉइड करनी चाहिए, राइट। ये सारी चीजें तो टेक्सटाइल, ऑल इन ऑल टेक्सटाइल तो चाहिए चाहिए अपने को, लेकिन वो कंपनीज लो जो बेच रही है डायरेक्ट कंज्यूमर्स को, जिसका कोई ब्रांड है। जैसे जॉकी था, तो पेज इंडस्ट्री क्या थी? पेज इंडस्ट्री पहले B2B थी, ठीक है, अब B2C बन गई है कितने सालों से, है ना, खुद के शोरूम्स आ गए हैं, सारी चीजें। तो यू हैव सीन की कितना वो बना, और ब्रांड स्ट्रांग था, जो कि मतलब हर किसी के माइंड में आज की डेट में, राइट, सबको पता है जो कि क्या चीज है। तो ब्रांड भी स्ट्रांग होना चाहिए उस कंपनी के पास, टेक्सटाइल जो बना रही है ना। तो वो करती है। एक क्वेश्चन और है आयुष, तो आई हैव रेड मेनी बुक्स, दीपक जी का क्वेश्चन है, बट अनेबल टू कंट्रोल इमोशन ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ मार्केट। सर कर ही नहीं सकते हैं, बुक पढ़ने से मैं कह रहा हूँ कंट्रोल ही नहीं होता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक मत पढ़ो, आप ये मत सोचिए कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप बुक पढ़ रहे हो। आप अपने बिहेवियर को मैनेज करने के लिए बुक पढ़ो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, लाइक स्टॉक मार्केट के लिए ना कोई एकेडमी नहीं है, या कोई एकेडमिक माहौल नहीं होता है, यहाँ पे हम आके सीखते हैं, राइट। यहाँ की जो एकेडमी है, वो वंस यू इन्वेस्ट, इवन व्हेन यू डू पेपर ट्रेड, तब भी आपकी वो साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं होती है, या वो मेंटल स्टेट नहीं बन पाती जो एक्चुअल पैसा लगा के बनती है। तो समटाइम यहाँ पे बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना, मैंने बता दिया। लड़ सकते हो आप, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप बीट नहीं कर सकते इमोशंस को। आज मार्केट गिर गया, आपने आज कंट्रोल कर लिया, कल को फिर गिर जाएगा, तो कल को भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, कल को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई ये ठीक है, ठीक है। तो कम स्क्रीन देखो ब्रेकडाउन्स के टाइम पे, और अपनी स्टडी पे कन्विंस्ड रहो। और अगर आप ट्रेडर हो तो भाई मैं तो कह रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो जो है उसको बुक कर लो जहाँ पे भी है, और दूर रहो जब तक स्टेबिलिटी ना आए, ठीक है। एक चीज है, there's one thing which I wanted to be very clear about to all the participants. None of the stocks which sir has mentioned are any form of investment advice. These are just stocks that and sectors he is mentioning, so you can study these stocks. He is not giving you any investment advice or any buy side call that you can go and pick up these stocks tomorrow. So be very clear on that, that this is no form of an investment advice. So all of you should be very clear on that, that this is not an investment advice. 5 मिनट में And I think, I think most of the questions are done. So if no one else has any questions, then should we close the session today? Just put a yes, or if all the questions are done. So I'll just close the session. I'll end the recording and I'll close the session.